So here I am, the wings of Saga Euphoria 2013. Honorable Chief Guest, Shri Mahesh Shuklaji, Senior General Manager BSNL, Distinguished Guest of Honor, Shri Rajaram Ayyarji, Associate Vice President, Aurobindo Pharmaceuticals, Hyderabad, Reverend Chairman, Sir Shri Sudhir Agrawalji, Shri Siddharth Agrawalji, Secretary Sagar Group, our Executive Director, Mr. Pawan Gruber, all the dignitaries and my dear fellow friends. As we are taking our seats and excited to enjoy the evening, the season, the ambience, I, Aisha Khan, And I, Cassius Cletus, are euphoric to invite you and welcome you all for another wonderful evening of India. We have the immense pleasure to have with us Shri Mahesh Shuklaji as our chief guest for tonight. And at Ghana and Saudi Arabia. He has degree in electronics and telecom from MENET. He has also completed MBA in marketing from IGNOU. He is recipient of various awards from central government, state government and other organizations like Chamber of Commerce. He belongs to our own state, Madhya Pradesh, Gwalior. At present, he is also Vice Chairman of Institute of Electronics and Telecom Engineers, which is a national level body. Dignitaries to come forward and lit the lamp. Saraswati, goddess of knowledge and the art, embodies the wisdom of Devi. She is the river of consciousness that is Saraswati Vandana. वरदंड मंडित करा या शुभ वस्त्रवता या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामान पार्थ सरस्वती भगवती विशेष जगत Lush green campus of Sister Car. Saga Euphoria 2013 is in the progress and will conclude tonight.
This year also the participants and the organizers are worked with great zeal, enthusiasm in various competitions. On 14th March, the Technoware, on 15th, the Sarang, Rainbow of Talent, where they discovered new talent. The college really appreciated the spirit through our participants. Today's evening is decorated with life of Indian culture and tradition, which is enlightening the whole world. Throughout the evening, you will taste the flavor of our culture through our various performances. India stands for its incredible culture, great traditions and rituals, be it the people, lifestyle, the mystical charm. India has always amazed the world with her uniqueness. Indian flavor, the world of tradition, as the name suggests, is an attempt to highlight the country's liveliness, colors of culture, religion, generosity and achievements of India and its people. Everything is special in this land of gods. Beauty of Indians lie in the clothes they wear. Get ready to be acquainted with its wonderful customs and traditions and feel the pulse of this enchanting land by our today's evening of Saga Euphoria 2013. In spite of saying all in words, let's ignite our evening with the jewels of performances. Flowers are the sweetest things God ever made and for God to put the soul into. As flowers are the best way to express our affection, so may I request our Reverend Chairman Sir, Shri Sudhir Agrawalji, to please give a floral welcome to the Honorable Chief Guest, Shri Mahesh Shuklaji, General Manager. To present flower to our guest of honor. Come on guys, give a huge round of applause. Hey, hey, Gare, 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 Gare.
The dignitary doesn't need any introduction. He is the pivotal axis around which the whole Sagar Group revolves. He is none other than our chairman, Sir Shri Sudhir Agrawal ji. He founded the Sagar Group in 1983, one of the fastest growing private sector enterprise with businesses in the education, real estate and industries. Shri Sudhir Agrawal ji, a man with vision, mission, founded Agrawal Builders 25 years ago. His sheer dedicated hard work and zeal to add value to human life made him think and understand the need of common man and led him to be on the apex of the famous Agrawal Builders, one of the prestigious real estate giant of central India. Sir, please enlighten us. Good evening, Namaskar. Most respected Chief Guest of today, Mahesh Shukla sir, Senior General Manager BSNL. सर धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला बहुत बहुत. अभी सर बता रहे थे उनको कहीं जाना भी है, बहुत बिजी है, इसीलिए उनकी स्पीच के लिए पहले बोल दिया था. मगर उन्होंने बोला कि नहीं सर आप बोल के आइए, तो उनका बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को मौका दिया. गेस्ट ऑफ ऑनर राजाराम अय्यर सर, हु हैज़ कम फ्रॉम हैदराबाद. उनसे अभी मेरी बात भी हो रही थी. बहुत अच्छे से आज उन्होंने हमारे कॉलेज पे, गांधीनगर वाले कॉलेज पे वर्कशॉप भी करी और उन्होंने हमारे बच्चों को एड्रेस करा. अभी वो सर हमारे बच्चों की तारीफ़ कर रहे थे, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा. राजाराम अय्यर सर से तो मैं अकेले में बैठ के बात करूँगा, कुछ सीखने को मेरे को भी मिलेगा. थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, धन्यवाद. प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज डॉक्टर ज्योति देशमुख मैम, प्रिंसिपल्स ऑफ अवर अदर इंस्टीट्यूट्स, मूर्ति सर हु इज डायरेक्टर ऑफ अवर ऑल 3 कॉलेजेस, जयश्री कंवर मैम, मेरे पापा निगम सर बैठे हैं हु इज टॉर्च बीरर फॉर अस, अदर फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे बच्चों, और सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन. हाथ जोड़ के आप लोग आए, बहुत अच्छे से प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हो बेटा, बहुत खुशी की बात है. मेरे को हर एनुअल डे में जाता हूँ तो बहुत खुशी होती है इस बात की कि अभी तक मेरे को कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली. खूब बच्चों ने मस्ती करी, आज आखिरी दिन है, प्रिंसिपल मैम ने मेरे से कोई शिकायत नहीं करी बच्चों की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. और मेरे को लगता है कि आगे भी ऐसे ही करो, डिसिप्लिन में रह के खूब अच्छे से काम करो. इस मौके पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा हर बच्चे को. जैसे अभी ये फ्लोरल वेलकम करा, वो कैमल बन के बच्चे आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की स्किल आप में डेवलप हो. मैं भी सर से बात भी कर रहा था, RGVP की पढ़ाई करना, इंजीनियर बनना बहुत आसान है. 4 साल की पढ़ाई अगर आपको वास्तव में कहा जाए तो आप लोग 2 साल में करने की कैपेसिटी रखते हो, मेरे को अच्छे से मालूम है. तो इस 4 साल को बहुत अच्छे से यूज़ करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, कुछ ना कुछ अच्छी आदत भी रखो. जैसे म्यूज़िक सीखो, स्पोर्ट्स सीखो, अपनी कुछ नहीं हो तो राइटिंग इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, कुछ नहीं हो तो एक अच्छे इंसान बनने पे ध्यान दो. इंसान अच्छा बनना तो सबसे बढ़िया बात है. कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ काम करो. कुछ ना कुछ बच्चों को सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छी आदत जीवन में रखूँगा और उस आदत को परस्यू करूँगा. जैसे अगर चाहो तो सच बोलने की आदत डाल लो. मेरे को लगता है सच बोलना सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है. सच बोलने के लिए अंदर से डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए. और अगर मेरे को बहुत खुशी होगी कि हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारी फैकल्टी मेंबर्स सिर्फ सच बोलने की आदत डालें. सच बोलने की आदत अगर आप डाल लोगे तो उस आदत के अंदर सब चीज़ें इंक्लूडेड है. तो मेरी तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को, मेरे फैकल्टी मेंबर्स को सद्बुद्धि दें ताकि वो सिर्फ सच बोले. सच बोलो, आपको जीवन का मज़ा आ जाएगा बेटा. और मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत, आज का प्रोग्राम की बहुत अच्छी तैयारी है. हालांकि बहुत तेज हवा चल रही है. हमारे GM सर तो कल से ही बहुत बेचारे परेशान थे. राहुल मिश्रा सर मेरे से कह रहे थे, दिन में भी वो इधर उधर तैयारी करते रहे, बेचारे परेशान होते रहे. मगर भगवान करेगा उनका प्रोग्राम अच्छा रहेगा. बेस्ट ऑफ लक बेटा, खूब अच्छे से तैयारी करके आप लोगों ने प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फैकल्टी मेंबर्स को खास करके धन्यवाद जिन्होंने इन बच्चों को गाइड किया. स्टेज भी मैंने अभी चढ़ के देखा, बहुत अच्छा है. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच.
Thank you, sir. It was a treat to hear your inspirational and motivational words. It always acts as energy drink for us. हनुमान जी की बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना. Yes, my dear friends, I am talking about an ardent devotee of Lord Rama, the Bajrangbali Hanuman. Hanuman is often called the son of deity. Ever since we have heard the name of Hanuman, it's always addressed as Veer Hanuman. Signature of strength, symbol of courage is best defined in words. You know, Swapnil, Bajrangbali was so mischievous in his childhood. As a child, he like vowed to eat a sun, believing it as a ripe mango. OMH. OMH? Arey, oh my Hanuman. Oh, great! It was just one mischief from all his notorious leelas. Do you want to see more? So you have to wait for our next performance. शुरुआत करते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति की भगवान श्री राम जी के जयकारे के साथ. सियावर रामचंद्र की. से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोकवन. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन. महाबली महारुद्र महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान. महाबली महारुद्र महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान. चेहरे से झलकती नम्रता, आंखों में शांत चित्त की छाया, पर है सुबह की लाली विशाल सिंदूर की काया. महाबली महारुद्र महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान. महाबली महारुद्र महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले.
ये चाहें कि कितने वो पोएम सुनने के लिए शौकीन है, जोरदार ताली बजाएं। कविता की 4 पंक्ति मेरे। हम में पंख नहीं परिंदों की, पर हौसले से उड़ान भरेंगे। हम में पंख नहीं परिंदों की, पर हौसले से उड़ान भरेंगे। सागर ग्रुप में समा जलाकर आसमां पर नाम लिखेंगे। सागर ग्रुप में समा जलाकर आसमां पर नाम लिखेंगे। हम भी हैं इस सागर के मोती, अपना अलग पहचान करेंगे। दोस्तों, कविता की अंतिम 2 पंक्ति। हम भी हैं इस सागर के मोती, अपना अलग पहचान करेंगे। माता पिता की ज्योति हैं, हम सब जग में चलकर नाम करेंगे। माता पिता की ज्योति हैं, हम सब जग में चलकर नाम करेंगे। कविता की अगली 4 पंक्ति। तम में नहीं तमीर में नहीं, प्रकाश में चलना सीखेंगे। तम में नहीं तमीर में नहीं, प्रकाश में चलना सीखेंगे। श्रवण अक्षरों में अमर इंक से अपनी तकदीर को लिखेंगे। श्रवण अक्षरों में अमर इंक से अपनी तकदीर को लिखेंगे। तब हम ही में कोई शिबिर रमन तो कोई अब्दुल कलाम बनेंगे। माता पिता की ज्योति है, हम सब जग में चलकर नाम करेंगे। माता पिता की ज्योति है, हम सब जग में चलकर नाम करेंगे। दोस्तों, मैं फिर भी अपनी कविता का अगली 4 पंक्ति और इसमें आपका वाह और आपकी एनर्जी देखना चाहता हूं कि कितने सागर ग्रुप के बच्चों के हाथों में जान है। शहीदों की चिताओं में जो जला नहीं वो कहानी है हम। शहीदों की चिताओं में जो जला नहीं वो कहानी है हम। देश के हित में काम करेंगे, सागर ग्रुप का निशानी है हम। देश के हित में काम करेंगे, सागर ग्रुप के निशानी है हम। दोस्तों, कविता की अगली 2 पंक्ति। भूलना मत उस चमन की, भूलना मत उस चमन की जिसकी 1000 कुर्बानी है हम। यदि जोहरी के लिए मोती है तो प्यासों के लिए पानी है हम। यदि जोहरी के लिए मोती है तो प्यासों के लिए पानी है हम। और फिर मैं अपने कविता का 4 पंक्ति। सागर ग्रुप के सपनों में हकीकत का नजारा होगा। सागर ग्रुप के सपनों में हकीकत का नजारा होगा। और इस पोएम पर मैं चाहता हूं कि सागर ग्रुप से जितने भी रिलेटेड यहाँ इंसान बैठे हैं, अपने दोनों हाथ खोल दें, अपने एनर्जी को प्रवाह कर दें इन फिजाओं में। सागर ग्रुप के सपनों में हकीकत का नजारा होगा। जिसकी ईमान इमारत बनेगी ऐसा संदेश से भरा होगा। जिसकी ईमान इमारत बनेगी ऐसा संदेश से भरा होगा। हम उन चट्टानों का संगम है, हम उन चट्टानों का संगम है जो तूफानों का सीना फाड़ा होगा। हम रहे या ना रहे, पर इसकी अमर निर्माण में एक ईंट हमारा होगा। एक ईंट हमारा होगा। एक ईंट हमारा होगा। नहीं अभी क्यों? ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जन भरन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। To enlighten us with few words. निगम साहब, राजा राम जी, मैडम देशपांडे, मैडम कंवर,
सभी सागराइट्स, यूफ्राइट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही है ऐसा लग रहा है। प्रकृति भी बहुत खुश है आप लोगों के प्रोग्राम देखकर। और मुझे इनफैक्ट जब मैंने देखा कि फूलों का गुलदस्ता हवाई मार्ग से आया तो मुझे 3 इडियट्स की याद आई। लेकिन वो इडियट्स बड़े इंटेलिजेंट थे बहुत। मैंने वो लेक देखी है, मैं श्रीनगर में पोस्टेड था कश्मीर में, तो लेह जाके मैंने वो जगह देखी जहाँ इस पिक्चर की शूटिंग हुई, जहाँ वो स्कूल था। तो ये सागर के भी बच्चे बड़े इंटेलिजेंट खालिस्तान हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इनफैक्ट मैं तो मैडम देशपांडे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके इंसिस्टेंस की वजह से मुझे अपने प्रोग्राम थोड़े से रीशेड्यूल भी करने पड़े, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हम लोग मार्केट में, टेलीकॉम में, इंडस्ट्री में बैठे हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। जब मैं आ रहा था तो आपके कॉलेज के लोगों ने मुझे बताया कि कुछ बच्चों का रुझान किसी पर्टिकुलर ब्रांच में है और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं है। मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि एज ए इंटरव्यूअर या एज ए पर्सन इन द इंडस्ट्री, हमारा आप कोई भी उदाहरण ले लें, चाहे वो टेलीकॉम की टावर है, तो उसमें सभी ब्रांचों के लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें टावर खड़े करने के लिए सिविल इंजीनियर लगता है क्योंकि उसको कंक्रीट का काम करना होता है। हमें मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं क्योंकि वो टावर जो है वो मटेरियल की है, इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। और हमारे स्पेसिफिकेशन ये होते हैं कि हम चाहते हैं कि उसका बेस कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो हमको स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी लगते हैं। हमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे भी लगते हैं क्योंकि इस टावर का कोई मीनिंग नहीं है अगर ये टावर दूसरी टावर से रेडियो फ्रिक्वेंसी से बात ना कर पाए। टू कम्युनिकेट सिग्नल्स हमको इलेक्ट्रॉनिक्स के लगे भी चाहिए। हमको एक्सचेंजेस को चलाने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर्स भी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के बच्चे। तो मैं यहाँ आके बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को जो भी यहाँ पर हैं कि हम जब इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो हम कई बार बच्चों से पूछते तक नहीं है कि तुम्हारी ब्रांच क्या है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दैट स्पार्क जो हमको मालूम है कि ये लड़का या लड़की में पोटेंशियल कितना है। हमें उस बच्चे को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी होती है। हम उसे 1 साल तक तैयार करते हैं। मैं सुधीर अग्रवाल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जब उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने को ज़्यादा बोलते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व निखरे, वो और मुखर बने, उनमें स्पार्क पैदा हो, उनमें क्रिएटिविटी पैदा हो। जब वो पीछे से ऊँट आया तो ये क्रिएटिविटी का नमूना था। एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल फॉर दिस। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। मौसम थोड़ा सा अपने फेवर में हो गया, थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई, फिर गर्मी कम हो गई तो और अच्छा लगा। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि सागर ग्रुप एक ब्रांड नेम है। सागर ग्रुप एक वेल नोन नेम है। मैडम ताली बजा रही थी, लो मैडम का साथ दीजिए। मैडम वाज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट सबको खुश होना चाहिए। आज हम तो ये अग्रवाल साहब के लिए ताली बजाइए। सागर पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहली क्लास के लिए लोग रिकमेंडेशन लेटर लेकर आते हैं। 420 सीटें सिस्टेक आर के पास हैं, बहुत सारे कॉलेजों के पास नहीं है। बहुत सारे कॉलेज खाली जा रहे हैं। मार्केट में सागर इंस्टीट्यूट का नाम है
SIRT का नाम है, सिस्टेक का नाम है, सिस्टेक आर का नाम है, सागर इंस्टीट्यूट, इट्स ए ब्रांड। और हम लोगों के मन में सागर इंस्टीट्यूट्स के प्रति नरमी का भाव है। हम लोग उनको प्रमोट करना चाहते हैं। जो भी आपके यहाँ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो लोग जानते हैं हमारे यहाँ के लोगों को। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं कि हम लोगों के यहाँ एंट्री के लिए अब अप्रेंटिसशिप एक स्कीम चालू हो गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है। उसमें मैंडेट ये है कि वो RGPV में यहाँ पर आएंगे और आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे। उस इंटरव्यू में हमारे यहाँ से भी कोई लोग जाएंगे तो वो आपके कॉलेज के बच्चों को चुनेंगे फॉर दैट 1 ईयर। उस 1 ईयर में हम लोग आपको अप्रेंटिस बनाएंगे और हो सकता है कि 1 साल के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट हम लोग दे दें। दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल इस बात का, जैसा अग्रवाल साहब ने बताया कि सागर इंस्टीट्यूट के गांधीनगर में आज वर्कशॉप हुई। ऐसी वर्कशॉप और वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के आदमी के द्वारा हुई। अग्रवाल साहब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे जैसे इंजीनियर को और दवाई वाले आदमी को दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। ये अग्रवाल साहब की मैनेजरियल कैपेबिलिटी है। मुझे आशा है कि लोगों ने वर्कशॉप में काफ़ी सीखा होगा। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कई जगह जाना होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा हुआ कि हमने बात कर रहा हूँ कल्चर की, वैल्यूज की और डिकोटोमी की। डिकोटोमी मतलब कहें कुछ करें कुछ। उदाहरण देता हूँ आपको कि नीचे हम लोगों ने सरस्वती वंदना की, प्रोग्राम चालू हो गया और प्रोग्राम चालू होने के बाद जो यहाँ अच्छा हुआ और वहाँ अच्छा नहीं हुआ वो बताता हूँ कि प्रोग्राम चालू होने के बाद स्टेज के ऊपर पॉप संगीत बजने लगा। कल्चर वैल्यूज नीचे की सरस्वती वंदना की हैं या कुंदेंदु तुषार हार धवला बोला जा रहा है। हम लोग आशा करते हैं जो सागर ने आज दिखाया कि यहाँ पर पूजा हुई, पाठ हुआ, रिलीजियस कल्चर दिखाई गई। मैं मना नहीं करता, आप कथक दिखा सकते हैं, आप बहुत से भरतनाट्यम दिखा सकते हैं, आप सितार बजा सकते हैं, आप तबला बजा सकते हैं। यहाँ तक भी अलाउड है कि आप गिटार वगैरह बजा लें, लेकिन यहाँ तक ये अलाउड नहीं है कि कम से कम एज ए चीफ गेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कि नीचे हम प्रेयर करें सरस्वती की और गाना गाएं पॉप संगीत का। समहाउ यहाँ बहुत अच्छा लगा। जाने के पहले यहाँ के हनुमान जी को तो कोई टीए बिल नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन टीए बिल मतलब जब हम जाते हैं तो उसका खर्चा जो क्लेम करते हैं, लेकिन जाने के पहले फुल रिस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ ऐसा हुआ। हमने देखा कि हमारे हनुमान जी हवाई मार्ग से आए, तो ये उस समय भी हुआ था कि हमारे परम पूज्य हनुमान जी हवाई मार्ग से लंका से हिमालय गए थे। जब सब कुछ हो चुका, युद्ध खत्म हो गया, रावण मर गया, रामचंद्र जी वापस आ गए, वाराणसी अपने इसमें अयोध्या पहुंच गए, राजा बन गए, तो बात चली कि लोग अपने अपने अब टीए बिल बना लें, क्लेम कर लें अपने अपने। तो हनुमान जी ने भी अपना टीए बिल क्लेम किया हवाई मार्ग से आने का। तो जैसा कि ब्यूरोक्रेटिक वे में होता है, उनसे कहा गया कि हनुमान साहब जी, हनुमान जी आप तो श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, तो सेवक को हवाई मार्ग से जाने की पात्रता नहीं है, इसलिए आपका टीए बिल रिजेक्ट किया जाता है। ये एग्जाम्पल है एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का, जो कि हम लोग अपने पार्लर्स में, अपने मैनेजमेंट में, अपनी वर्कशॉप में अक्सर रिपीट करते रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जॉब्स और जॉब्स के करने के लिए गुण और मैनेजरियल क्वालिटी एक बात है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अलग अलग बात है। आप लोगों का अधिक समय नहीं लूँगा, आपका बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन इस आप लोगों को बहुत ज़्यादा और तहे दिल से बधाई देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।
Thank you for doing the honors.